Bonjour! No, this is not a French show, but you cannot ignore France this week because of the ongoing Cannes. And it would be illegal if we do not talk about the Indian artists that have gone global. Hi, I'm Atika Farooqui and you're watching Now Showing. And here are the headlines. From scorching the red carpet to celebrating Indian films and women, the Cannes Film Festival has a special India flavor this year. A throwback chat with the star, the fighter, the Hera of Hera Mandi, Manisha Malikajan Koirala. There is nothing illegal about this meet as we chatted with the key cast of the third season of legal drama series Illegal. And singer Raja Hassan talks about singing the song Sakal Ban from Hera Mandi. Now, we are accustomed to Cannes Film Festival as a platform for Indian beauties to scorch the red carpet. But this year though, Indian cinema is poised to make waves as 7 films have been screened across prestigious sections. Plus, Indian women filmmakers get a huge boost. And living legend Meryl Streep was honoured, and as always, there is the best from global cinema. Here's a roundup of the 77th Cannes Film Festival so far. Each year, our Desi girls scorch the Cannes red carpet. 2024, though, isn't all about glitz, glamour. As Indian cinema, Indian women are celebrated like never before for their myriad talents. The Elephant Whisperers was a gift from the gods. And now, Academy Award-winning producer Guneet Monga Kapoor received another present after she was chosen to head the Women in Films India initiative that was launched at the 77th Cannes Film Festival. Supported by the parent body, Women in Film and Television International, this landmark initiative aims to encourage female filmmakers in India. And what about Indian films at the French Riviera? Filmmaker Payal Kapadia's All We Imagine as Light becomes the first Indian film in 30 years to be screened and compete in the Palme d'Or category. It has a fabulous cast comprising of Kani Kasruti, Divya Prabha, Chhaya Kadam and Ridu Haroon. This slice of drama is set in Mumbai. Desi cinephiles will surely be rooting for this humble film to create history. Kapadia's no stranger to Cannes. In 2017, her short film Afternoon Clouds had screened here. Veteran actor Naseeruddin Shah was humbled with his film Manthan being restored and screened under the classic section at Cannes. Starring Naseeruddin Shah and late legends Girish Karnad, Amrish Puri, Smita Patil, the 1976 Shyam Benegal directorial depicts the cooperative movement among rural dairy farmers in India. Labelled as the OTT girl, Radhika Apte is here with her film Sister Midnight, and it has been making waves at the prestigious film festival. Helped by Karan Kandhari, Sister Midnight screens under the Director's Fortnight category. I just hope it gets into the cinema because it was designed for that. You know, with the fact that, you know, the way the sound of the image is put together. Then there is Sandhya Suri's Santosh, a crime drama that has a widow reluctantly taking up her late husband's job. The female cop is up against odds while probing the rape and murder case of a lowborn in North India. The film will make its way into the uncertain regard section. The Shameless by Bulgarian filmmaker Konstantin Buzhanov, In Retreat by Masim Ali and Sunflowers were the first ones to know. A film by FTII students round off the India representation at Cannes this year. As for world cinema, Warner Brothers' Furiosa, a Mad Max saga, got all the limelight at Cannes this year. The film got a 7 to 8 minute standing ovation with lead actor Anya Taylor-Joy, naturally overjoyed by the reception. Living legend Meryl Streep was given an honorary Palme d'Or for her 4-decade-long plus contribution to world cinema.
Demi Moore, and Cannes gave you Demi Moore. The ethereal beauty was touched by the wholesome praise to Margaret Qualley and her feminist horror saga, The Substance. Some of the other global films that are vying for the top honors are Francis Ford Coppola's Megalopolis, Sean Baker's Anora, The Apprentice by Ali Abbasi, Le Moi Ouf by Gilles Lelouch, and Jia Zhang's Caught by the Tides. As always, there's plenty cinema for the cinephiles. But the Cannes red carpet is also a treat for the paparazzi, and Indian beauties are never short of grabbing the eyeballs. To us Indians, Cannes is synonymous with one name, Aishwarya Rai Bachchan. The former Miss World Bollywood star is the toast at the French Riviera each year. Aishwarya debuted at the 2024 edition in the monochrome gown adorned with 3D metallic elements and golden accents by Falguni Shane Peacock. And contemporary actress Kiara Advani turned heads on her Cannes debut this year with this beautiful pink gown. Acclaimed actor Shahana Goswami made a stunning appearance at the 77th Cannes Film Festival, where her film is premiering this year. Each year at Cannes, we expect the best films to be honored. There is never a dearth of glamour from the global as well as the Indian artists. कहते हैं भगवान करे जिंदगी में कभी अस्पतालों और कचहरियों के चक्कर न लगाने पड़े. Haven't we all grown up listening to this adage? But don't worry, the men and women in black robes are coming back onto your screens, and they do you no harm, as Jio Cinema is set to launch the 3rd season of Illegal. And it's perfectly legal to watch this illegal. We chatted with actors Piyush Mishra and his entire supporting cast, where they tell us what can be expected from the series this time around. And the veteran Piyush Mishra also had us in splits while talking about his own personal experience. I think वो audience को आकर्षित करने के लिए है. You know, I think it's a strong, nice title. इसमें काफ़ी वज़नदार title है. You know, even when I heard it for the first time, illegal, मैंने कहा ये क्या चीज़ है? People play on that word quite a lot. So I think taboo things attract people, तो इसलिए रखा गया होगा. सभी लोग प्रे करते हैं इनसे बचाए रखें, मतलब इनके चक्कर में ना पड़े. कोई नई बात नहीं है, सही बात है. इनमें कौन सी के चक्कर में पड़े? पुलिस के बताया आपने, और वकील से और डॉक्टर से. अरे अच्छी सेहत किसी को पसंद नहीं है, किस सबको पसंद है. लीगल मैटर्स में फंसना किसको पसंद है? सभी चाहते हैं, लेकिन ऐसे हो नहीं पाता ना सर. कहीं ना कहीं तो आपके मतलब पी के हम जो ड्राइव करते हैं तो फंसना लाजमी है. अगर हम सोशल लाइफ में रह रहे हैं तो कम से कम इन चीज़ों को सामना करना पड़ेगा. हम ना चाहते हुए भी फंसेंगे. जब मैं लॉयर था, मैं M&A लॉयर था, कमर्शियल लॉयर, मर्जर्स एक्विजिशंस. क्रिमिनल केस मैंने कभी ज़िंदगी में आर्ग्यू नहीं किया है, बट हाँ मैंने कोर्ट में अपीयरेंस की हैं काफ़ी, और वो कंफर्ट फैक्टर था, लेकिन अदरवाइज इट्स वेरी डिफरेंट. कहीं ना कहीं आप अपने कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाते हो ज़्यादा, बिकॉज बचपन से वही नाम सुनता आ रहा हूँ. सो यू काइंड ऑफ फील द कैरेक्टर अ लॉट मोर व्हेन योर नेम इज़ द सेम थिंग एज योर रियल नेम. तो और इत्तेफाकन रखा गया है. इट वाज ऑलरेडी इन द स्क्रिप्ट बिफोर आई एंटर्ड. वो डायलॉग है, खाली डायलॉग है, मतलब वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है. बाकी जो है, अगर सक्सेसफुल लॉयर बनना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? अंदर के जज को मारना पड़ेगा. मतलब जो डिसीजन नहीं दे सके, मतलब अगर आप पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि ये गलत है और ये सच है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जज बोल रहा है, आप लायर नहीं है. कि एक सारे दोस्त होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपके जज बन जाते हैं कि यार तू ये कर, ये अच्छा है, ये ख़राब है, तो वो गलत लगता है. मुझे बोला जाता है जज मत बनो, बी ए लॉयर की तुम ये बतलाओ कि हाँ भाई ये तुम्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. हो सकता है आपका क्लाइंट बहुत ख़राब हो, बहुत गलत हो, लेकिन आपको क्लाइंटेड आपको ये जॉब मिला है कि आप उसे बचाइए, तो आपको बचाना पड़ेगा. आप जजमेंटल नहीं हो सकते उस वक्त. You know, it feels like a new show because so much time has passed since season 2 came out, and so much time has passed since we finished shooting this particular season. So yes, it does feel new. The emphasis here is to try and sort of make it as real as it gets without it being preachy or overbearing or boring, and being entertaining at the same time. मेरी ज़िंदगी में यार मैंने मार दिया था पकड़ के. मेरे किराएदार खाली नहीं कर रहा था मकान अपना, तो उसने मेरे पेरेंट्स को बहुत परेशान कर रखा था.
और मैं दिल्ली में था। मतलब मार दिया था या मार दिया, पिटाई लगा दी थी। तो ऐसा था, मैंने उसने गया वहाँ पर, तो उसने कहा कि यार आप लॉयर कर दो पीयूष भाई, लॉयर कर लो। तो मैं लॉयर, कौन लॉयर करे, अब साला पैसे दो उसको, फिर वहाँ पर मगजमारी करते फिर मैंने पकड़ के उसको बहुत पिटाई लगाई उसने। अगले दिन छोड़ दिया उसने मकान। केस क्या करेगा, अरे केस वेस कुछ नहीं हुआ, छोटा शहर था, छोटे शहर में ऐसी वारदातें होती रहती हैं, तो मैंने कर दी। हो सकता है वो अधिक ताकतवर होता तो वो कर देता, लेकिन वो ताकतवर साबित नहीं हुआ। मैं इस बार ताकतवर साबित हो गया, मैंने पिटाई लगा दी उसकी, मेरा मकान मिल गया मुझे। And now moving on, she hails from a Nepalese royal family, but Manisha Koirala has never had any qualms in playing different characters. She started her career in the Nepali film industry, shooting to limelight with her very first film called Pheri Bhetola that came in 1989. Subhash Ghai, then showman of Hindi cinema, roped her for his romantic family feud drama Saudagar. From Ghai to Vidhu Vinod Chopra, Mani Ratnam to Sanjay Leela Bhansali, Koirala has worked with the finest Indian filmmakers of her era. She reunited with Bhansali, playing the chief courtesan Malika Jan in the acclaimed Netflix series Heera Mandi. Manisha is a fighter off screen too, having successfully beaten cancer. The seasoned actor is an inspiration for all of us, and I loved her in Heera Mandi. Here are few pearls of wisdom from Koirala in this throwback chat with me. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। माइंडसेट की बात होती है और मुझे करना पड़ा, क्योंकि एक सर्वाइवर जो एक थोड़ा सा मीक लगता है वर्ड और थोड़ा सा कमज़ोर लगता है कि मैं सर्वाइव कर रही हूँ और कर लिया। क्रूसेडर में थोड़ा सा जोश आता है और थोड़ा सा, सो आई लाइक दैट। सैडनेस, डिप्रेशन होता है, सब होता है, लेकिन जब मैं उससे निकल के बाहर आई हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं उससे निकल सकती तो ये तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सैडनेस का स्पेस है, लेकिन इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है। इस दौर में लोगों को भी, मेरे दोस्तों को भी, जो मेरे करीब लोग, काफ़ी को समझ में नहीं आया कि वो मेरे साथ कैसे रहें, बिकॉज ये एक ऐसी भयानक रोग है जो कि लोग बहुत डर जाते हैं। और उनको ये वो लगता है कि भैया वुड शी वांट मी देयर और नॉट, कि मैं कैसे मदद करूं, क्या करूं। तो इस कंफ्यूजन में काफ़ी लोग ने मुझे अकेला ही छोड़ दिया। But that is not a good thing, no? No, it's not a bad thing either. You don't know whether that person really needs you or wants you in the first place. Did you need them? No. You didn't? I didn't. I really appreciate the fact that I was left to deal with it, and when I came out of it and I'm fine, you know, I'm back here and doing my thing. कभी-कभी मैं question भी करती हूँ कि why I'm alive? Because there's so many people that I know who have gone through this disease and they could not survive. काफ़ी लोग उनमें से अभी जिंदा नहीं हैं। मैं कभी-कभी अकेले में सोचती हूँ कि मुझे क्यों भगवान ने जिंदा रखा, मैं क्यों जिंदा हूँ। और तो एक ही उत्तर मिलता है कि maybe that probably I can do something to other people, you know, maybe like I don't know. मुझे अभी याद है जब मुझे अपने बाल को शेव करना पड़ा, मैं अपने खुद को शीशे में देखती थी और सोचती थी कहाँ से कहाँ, क्या से क्या। एक दो बार मुझे याद है जब मैं बहुत थक गई थी तो मैंने माँ से बोला था कि अब नहीं सहा जाता, तो बट माँ डांटती थी। हाँ, इट वॉज क्वाइट अ फेज। मुझे काफ़ी कंपेयर किया मैंने मीना कुमारी जी की, हालांकि मैं उनकी काफ़ी इज्जत करती हूँ और शी इज़ अ लेजेंडरी फिगर, बट ये जो सैडनेस और डिप्रेशन और उससे एक्चुअली मुझे अनकंफर्टेबल फीलिंग होता था। और ये हमारे अंदर है कि वी वांट टू बी विक्टिम और वी वांट टू बी अ विनर और विक्टर। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिए, ज़्यादा अपने आप को झुकाइए मत प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, यू नो, छोटी बड़ी आती जाती है, बट यू नो इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ। मुझे कुछ ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा फिल्म में एंट्री के लिए। मैंने मम्मी से खाली 1 हफ्ते मांगे थे मुंबई में, और 1 हफ्ते के अंदर मुझे 4-5 बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने हाँ बोल दिया था। बोनी कपूर जी,
Shekhar Kapoor ji, Rishi Kapoor ji, and then the fourth one was Subhash ji. भगवान ने मुझे सब कुछ मतलब कि प्लेटर में दिया. 8-9-10 साल के बाद मेरा कुछ करियर से कुछ उससे थोड़ा सा मैं ऊब सी गई थी. तो उस वक्त जो एक मेरा दौर रहा, उस वक्त आई वाज कॉम्प्लेसेंट, नॉट रियली ग्रेटफुल, not appreciative of the gifts that life had given me, and the last nail in the coffin was the cancer that I received. मैं जब अमित जी से बाद में मिली तो मैंने कहा, अमित जी एक्चुअली मुझे बता रहे थे कि तुम्हें मनीषा, तुम जब मेरे घर में पहली बार आई थी तो तुम ऐसे पूरे घर को ऐसे देख रहे, मैंने कि आपको मालूम नहीं सर इसका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है. मैं जब बच्चे थे मेरी बुआ इतने थे पानी में, बाढ़ में, वो मुझे मेरा हाथ पकड़ के मुझे फिल्म हॉल में लेके जाती थी. उनको कोई चाहिए था सब दोस्त तो मतलब डॉन वगैरह फर्स्ट डे फर्स्ट शो और बाढ़ में कुछ भी हो जाए मतलब कि जाना ही है, देखना ही है अमित जी के. सो मैंने कहा इसीलिए जब मैं आपके घर आई तो मुझे मैं सब चीज़ अमिताभ बच्चन. So you know, I was in awe of him and I was totally enamored. And और सुभाष जी तो हर बात में डांटते थे तो बोलते थे तुमको ढंग का कपड़ा भी नहीं पहनने आता. मैं टॉन जीन्स और शर्ट ऐसा पहन के जाती थी तो काफ़ी डांटते थे. बोलते थे तुम जब बड़ी सेलिब्रिटी बन जाओगी उसके बाद कुछ भी पहनो तो चलेगा, but till then you have to have an image, you know. So he basically really विवेक को और मुझे काफी सिखाया सुभाष जी ने इस इंडस्ट्री में. हमें याद है उस जमाने में तो बड़ी अखबारों में आता था राइवलरी, हम लोग बहुत झगड़ा करते थे हम लोग पता नहीं कि इतना झगड़ा करते थे बट बहुत झगड़ा करते थे एक दूसरे को. ये तो बचपना काफी था. शाहरुख खान की दिल से आपकी करियर की सबसे फाइनेस्ट, उनके करियर की भी सबसे फाइनेस्ट एक्टिंग वाइज मानी जाती है. आमिर खान, मन, अकेले हम अकेले तुम, संजय दत्त, 7 फिल्मों में काम किया है आप दोनों ने. सलमान खान के साथ आपने कितनी अच्छी प्यारी फिल्मों में काम किया है. I think Shahrukh has always been extremely intelligent, very passionate about succeeding. Very he's focused and passionate. उनके यहाँ से निकलता है कि मैं सक्सेसफुल होके ही रहूँगा. Again, Amir is a perfectionist. आमिर के साथ काफी रिहर्सल करना पड़ता था तो I remember all that. सलमान के साथ, सलमान ऑलवेज हैड अ बिग हार्ट. कोई गरीब साथ हम लोग शूटिंग पैकअप होके वापस आ रहे थे, खुद का शर्ट निकाल के उसको दे दिया. तो आई वाज थिंकिंग यू नो very instinctively, it was not well thought or well planned, and you know not too many people to impress. And later on also when he does charity he doesn't tell people. Nobody knows. So I felt he's a lot hard. Time for a short break on the show. When we come back, we have singer Raja Hassan singing some of his very popular songs, particularly from Hira Mandi. Welcome back to Now Showing. I'm Atika Farooqi. Sakal Ban is a song from Sanjay Leela Bhansali which is being talked about and how. And up next we have singer Raja Hassan talking to my colleague Vishal Chatkara about the song which is actually written by Amir Khusro, the legendary Sufi poet. And we talk about Sufism, music and so much more. सकला बना भूल रही सरसों, सकल बना अम्बुआ फूटे टेसु फूले, गोरी करत श्रृंगार मालनिया, गढ़वाले आई घर सो, सकल बना भूल रही सरसों, सकला बन भूल रही सरसों, सकला बना. कैसे शुरुआत हुई, हाउ यू केम ऑन बोर्ड, और कैसा रहा एक्सपीरियंस गाने का टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग, स्पेशली दैट टू विद संजय लीला बंसाली? आई एम द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ कि संजय लीला बंसाली सर के प्रोडक्शन में मुझे ये मौका मिला, बिकॉज वन ऑफ आवर कॉमन फ्रेंड लाइक सूत्रधार जिसको बोलते हैं, इफ यू नो एनिमल्स म्यूजिक कंपोजर सुरेश पुराणिक, ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. So he asked me to sing few lines के राजा भाई आपको
ये बंदिश मालूम है क्या? एंड आई वाज थी, हम लोग बचपन से ये सुनते आ रहे हैं इन डिफरेंट डिफरेंट रागास, इन डिफरेंट डिफरेंट ताल। ए सकल बना, ए सकल बना फूल रही सर सो सक। तो इट्स बिट, इट्स क्या बोल सकते हैं, बीच का, जैसे बोलते हैं ना कि एक ठुमरी और एक कवाली, इसके बीच का एक जो रास्ता है, तो वो बन गया ये। तो कितना टाइम लगा और कितने टेक्स दिए आपने फॉर दिस सॉन्ग? सर टू बी ऑनेस्ट, टेक्स तो ऐसा था सर कि जितनी बार ले रहे थे उतनी बार श्रेयस पुराणिक वाज टेकिंग माय, यू नो, ही वाज डबिंग एट द सेम टाइम। तो वो कह रहा था कि यार तुम जितनी बार आ रहे हो अलग अलग तरीके से, जस्ट लाइक आई हैव स्टार्टेड लाइक सकल, ए सकल बना, सो ही वाज सेइंग कि वी कैन कीप दिस आल्सो। तो राजा भाई इन अ डिफरेंट स्टाइल, ए सकल बना। तो टेक तो बहुत कम लगे, बट ये था कि हमारा रियाज अच्छा हो गया। तो आपके कौन से सूफी फेवरेट सॉन्ग्स हैं जो आपको लगता है कि लोगों को सुनने चाहिए, जो आपको लगता है, जैसे शकलबन है, शकलबन सडनली ये गाना पहली बार, हालांकि नॉट पहली बार बट रिसेंटली जब हमने सुना था, दैट वाज व्हेन इट वाज पार्ट ऑफ कोक स्टूडियो पाकिस्तान। जो सर क्या होता था, जब 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 जो हमारा पुराना संगीत है वो जब यहाँ आया, चाहे वो आर्यन के रूप में आया, चाहे वो भारत खंड के रूप में आया, चाहे वो वेस्टर्न के रूप में आया, किसी भी रूप में आया, तो उनको है ना बंदिशों की जरूरत होती थी। जब आप कोई राग बनाते हैं तो बहुत सारी साउथ में ऐसी रागें हैं, जैसे तोड़ी है, पंजाब में कोई गाई जाती है या कोई किसी जगह पे गाई जाती है, तो सबसे पहले उसकी शैली चेक की जाती है, उसका शैली, उसका पढ़ने का तरीका, उसका एक जो एक क्या रिदम बनेगा और क्या तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। एक तो वो है, उनको अल्फाजों की बड़ी जरूरत होती है। तो अक्सर ये देखा गया है कि जितनी भी बड़ी बड़ी बंदिशें बनी हैं वो अमीर खुसरो साहब के कलाम से बनी है। जैसे जैसे और कौन सी? जैसे शकलबन है, छाप तिलक है, ये इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं सर कि मोहे ऐसे रंग दीनी महबूब इलाही। इसमें एक और चीज देखना आप कि इनमें ना अक्सर आपको ना स्टेंजाज नहीं मिलेंगे ज्यादा। यस। ज्यादा स्टेंजाज नहीं मिलने का रीजन ये होता है कि वो एक बंदिश के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि जब किसी आदमी को इतने में समझा दिया जाए तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। बंधनवा, इट्स दरबारी, बांधो रे बांधो सब मिल के मालनिया, मोहम्मद शाह प्यारे के घर काज बंधनवा। तो अब हमें बान धनवा, तो हमें उस तरीके से सिखाया है। तो ये जो प्योरली जो लिखे हुए होते हैं तो इसमें एक अंतरा होता है, एक स्थाई होती है। अब जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं। आपने राग भैरव का नाम सुना होगा। जी जी। तो सदा बाबा दा मा पा मा ग रे ग रे गा मा पा मा ग रे रे सा। तो अब उन पे वर्ड आएंगे, वो कौन से आएंगे? एक आम आदमी तो लिख नहीं सकता उन पे। तो ये जो पुराने जो लोग जो कलाम लिख के गए हैं उनको जोड़ दिया जाता है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि अमीर खुसरो साहब के ही कलाम है, इसमें और भी जो सूफी संत रहे, लाइक कबीर दास जी है या सूरदास जी, उनके भी हैं। लाइक जग के पालन हार कर मोरी नैया पार, तू ही राम तू ही अल्लाह। तो ये हम लोग बहुत लकी हैं कि हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे सूफी संत हुए हैं, ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपनी कलम के माध्यम से ये बताया कि हिंदुस्तान के अंदर कितने सारे कलर्स हैं सर। आप सोचिए कि शकलबन जैसी चीज आज के दौर में लोगों को इतनी पसंद आ रही है, तो उस वक्त क्या माहौल बना हुआ होगा सर। And that's all that we had this week for you. We meet again very soon in the next episode. Till then, take care. Goodbye.